Good evening, friends. Welcome to Murli Sir classes, and I hope you're all well. And I'm doing this classes since 3 months, and we are discussing about spoken English classes, how to speak English. And हम सब जानते हैं कि दैट इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में. तो इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट फ्यूचर के लिए भी, एंड इंग्लिश बोलना एंड बोलने के साथ साथ अच्छा से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारा क्लासेस करते आए हैं. एंड उस सभी चीज़ों के लिए कि आप एक मैसेज मेरे को बार बार कर रहे थे कि दैट वी नीड टू हैव अ ग्रामर क्लासेस मोर. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस ग्रामर क्लास. So we are doing this 9 days. We have completed with the grammar class, a part of speeches. So we have completed with the beautiful part of speeches. So in that part of speeches, we have completed noun, pronoun, verb, adverb, and we have completed all those important part of speeches. Today we will go a little further, because to prepare a beautiful sentence, we need to have a part of speeches. So once we complete a part of speeches, we can have a beautiful sentence. We can prepare, we can start writing the sentences, and we can able to speak very beautifully. That's actually a motto. So that's why we have started this part of speeches classes. As I told you that once the part of speeches class is completed, then we will go to a important part as a go to the 10th class, and along with that passive voice, active voice, and direct indirect speech also we will be going to learn in this spoken English class. And I hope I have given some more important tips also for you. I hope you are doing that well. What were the tips that I think you might have forgotten? That the early morning you will get up, whenever you get up you started to speak in English. So daily routine activities, whatever you're doing, you get up and you're saying good morning to yourself, and you're getting up, you're saying you're going out, and you're talking to your people, you're talking to your friends with English only. Whatever the way you know, it may be a wrong, it may be a right, doesn't matter. That's not a matter. The matter is only what you speak and how you speak. That is the most important thing, and I hope you are doing it well. When you started to practice that, you will definitely get success. Success will never come in one particular day or one fine day. You have to wait for that, and you have to work hard. You might have seen with many people are telling you, बहुत सारा लोग आपको बोलते हुए आपने सुने होंगे कि देखे होंगे कि that hard work is the only key for success. हमेशा हर आदमी यही कहते हैं, because ये भगवत गीता का एक सारा है. You have to work hard. Until and unless you don't work hard, you will not get success at all. सच हमेशा एक ही होता है. मैं बोलूँ या भगवान कृष्ण बोलूँ, कोई डिफरेंस नहीं होता है, because सच हमेशा एक ही होता है. There is no differences in this world at all, right? And we are all knows that भगवत गीता आजकल का मोटिवेशन स्पीकर का पेट पाल रहा है. हर मोटिवेशन स्पीकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, एवरी मोटिवेशन स्पीकर यूजिंग भगवत गीता, बिकॉज भगवत गीता में जितना सारा है, द डिटेल्स आर देयर इन दैट. इट कैन fulfill all the problems, we can clear all the problems, and I can give you even the English knowledge also being given in the Bhagavad Gita. I am not talking about English words, I am talking about the knowledge, how to gain the knowledge. English बोलना important नहीं है, English कैसे बोले वो important है, that's very important. And how do you get motivated to speak English, right? That is also there in the Bhagavad Gita. And we are all knows that what else Bhagavad Gita can give you under. Even I recommend you to go ahead with it. Next motivation classes is all about the Bhagavad Gita also, because I am giving you some important slokas about Bhagavad Gita, and I wanted to explain you, because that's the lifestyle. Actually Bhagavad Gita is the lifestyle. Actually we need to go ahead with that. And yes, definitely. And see, we will start with the grammar class. And as I told you that to prepare a sentence, we need to have a grammar part. I have completed with the subject predicate, I have completed with the noun, pronoun, verb, adverb. We are completed. Today we are going with preposition. I hope you have a pen and paper with you, and you are practicing every day, and I hope you are doing it. And I'm expecting your feedbacks whenever you have a doubt, when you're starting preparing a sentences. Whenever you have a doubt, I hope you will have a doubt. You must have a doubt. If you have a doubt, then only it means that you are understanding something. If you don't have doubt, it means that you're not understanding anything. It's very simple funda, because if you started to understanding something, you will definitely have some kind of
doubt what to do, how to do, because this language itself is a confusional language. It is not an easy language. Speaking English is not at all an easy language. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. It's a fact actually. Understand? Because it is a confusional language. It's an universal language. पूरा दुनिया का लोग इसको मानते हैं. और आप जाके खोजे ना कि that कोई भी आप ग्रामर बुक उठा के, इंग्लिश ग्रामर का बुक उठा के देख लीजिए कि that lots of confusion they have kept. You take it from passive voice, active voice, direct indirect speech, tense. They have always kept some doubt. That is, some sentences can be like this, some sentences may be like that. So they use the word maybe and can be. So that make us very confusional way. So we have to come out of that confusion. How do we come out of the confusion? We need to be a mastery in that. Very simple, है ना. जैसे कहते हैं ना हिंदी में एक कहावत है कि दैट कोई भी विद्या सीखने के पहले वो ब्रह्म विद्या लगता है, सीखने के बाद बंदर विद्या बन जाता है. इट इज़ ट्रू एक्चुअली. इट्स अ फैक्ट. हर चीज़ आप देखिए, बाइक चलाने का टाइम पे जब आप नया नया बाइक चलाते हैं, नया नया साइकिल चलाते हैं, तो बहुत डर डर के हम उस बाइक को चलाते हैं. कैसे एक्सीलेटर छोड़ना है, कैसे धीरे धीरे एक्सीलेटर राइज करना है. इट्स ऑल लॉट ऑफ कंफ्यूजन वी विल बी हैविंग. वंस वी नो, हम जब जान जाते हैं कि बाइक कैसे चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने दोनों हाथ छोड़ के बाइक चलाते हैं और बाइक के ऊपर खड़ा होकर भी हम बाइक्स चला लेते हैं, है ना. एक बार हम सीखने तक वो ब्रह्म विद्या लगता है, सीखने के बाद वो बंदर का विद्या बन जाता है. बंदर का विद्या मतलब ऐसे कंपैरिजन किया गया है कि दैट आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं. ये भी एक ऐसे ही विद्या है. दिस इज ऑल्सो द सेम लैंग्वेज, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. यू हैव टू डू इट दैट वंस यू आर लर्निंग दिस, यू हैव टू फोकस लॉट ऑन द लर्निंग. आप इस फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा जब आप सीखते हैं. जैसे कि मैंने पहले से ही बता चुका हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर एक हमेशा कहते थे कि दैट यू वांटेड टू अचीव समथिंग, यू लव इट, यू मैड अबाउट इट. इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाना है. पागल होने का यहाँ पे मतलब होता है, मैड अबाउट इट का मतलब होता है जैसे सचिन तेंदुलकर वाज मैड अबाउट क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट. वो इतना प्यार करते थे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को, तो उसके लिए वो भगवान बने क्रिकेट का. अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दैट मैं सो जाऊंगा, मैं आराम से घर में रहूंगा तो मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा. नेवर. ही विल बी ओनली सचिन तेंदुलकर, नॉट द मास्टर ब्लास्टर, नॉट द गॉड ऑफ क्रिकेट. कभी नहीं बनते थे. गॉड ऑफ क्रिकेट तब बने वो when he decided that I have to mad about cricket. Mad about cricket का मतलब होता है, I just want to really tell you a small example and I'll start it. कि एक बार सौरव गांगुली का इंटरव्यू था, even I was also watching about it, and he used to say that जब इंडियन क्रिकेट बाहर जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो होटल में रहते हैं नेचुरली कि हर आदमी को एक एक रूम तो नहीं दे सकते हैं होटल में. तो उसके लिए क्या करते थे, सीनियर लोगों को एक छोटा छोटा 2-2 रूम दे देते थे, 2-3 आदमी को मिला के एक रूम देते थे. सो दैट वाज द सिचुएशन. तो हमेशा पूछते थे सचिन तेंदुलकर के साथ कौन रहना पसंद करेंगे. यू नो, दे हैव टू शेयर द रूम. इट्स अ बिग रूम, 7 स्टार होटल होते हैं, बड़े बड़े रूम होते हैं, तो वहाँ पे कौन उसके रूम शेयर करना पसंद करते हैं बोल के हमेशा पूछा जाता था. लेकिन कोई मानते नहीं थे सचिन तेंदुलकर के साथ रहने के लिए. इट्स नॉट दैट द सीनियरिटी, इवन द सीनियर प्लेयर्स, उस टाइम पर कपिल देव रहते थे, सौरव गांगुली रहते थे, वीरेंद्र सहवाग रहते थे, दे आर ऑल द सीनियर्स बाय द टाइम. तो वो लोग भी मना करते थे सचिन तेंदुलकर के साथ रहने के लिए कि नॉट द रीजन कि दैट सचिन तेंदुलकर द सीनियर, दैट्स नॉट द रीजन. द मेन रीजन वाज दैट रात को, मतलब सचिन तेंदुलकर का मतलब समझ रहे हो ना, ही हैज प्लेड मोर देन 500 वनडे इंटरनेशनल मैचेस. जो आदमी खेला है वो कल सुबह मैच है, तो आज रात को नेट प्रैक्टिस, मतलब फैन पे एक बॉल लगा के रात भर प्रैक्टिस करते थे. उसका घर में जो भी रूम में सोते थे उनको सोने नहीं देते थे. सो इसमें क्या फनी थिंग है सर? इट्स नॉट ए फनी थिंग, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग दैट द पर्सन हु हैज स्कोर्ड 50,000 रन्स, माने एक आदमी ने 50,000, और फ्यूचर में भी कोई उसका रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं कर सकता है. उतना सारा रन जो बना दिया है, माने इज एन एक्सपर्ट क्रिकेटर, ही नोज एवरीथिंग अबाउट क्रिकेटर, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. अंडरस्टैंड? बट he still wanted to practice at night. रात को उन्होंने प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं. इसका मतलब हमको समझना चाहिए. ऐसे नहीं कि स्टोरी हमने सुना, इसमें से जो सार निकल के आया, द मॉरल ऑफ द स्टोरी जो निकल के आया, उसको हमको समझना जरूरी है. आप जितना भी प्रैक्टिस हो, जितना भी एक्सपर्ट हो, आप कल सुबह युद्ध है या कल सुबह यू आर गोइंग टू डू समथिंग, एग्जाम है या समथिंग लाइक दैट, सो बिफोर दैट we need to practice. It is compulsory. You may be the greatest personality in the world, doesn't matter. Okay, you have to understand. So this is, we call it as a mad about anything. I am not only talking about English. मैं English के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ. You have to mad about everything, whatever the passion you wanted to do. आपने जो भी जिंदगी में लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो,
वो सभी चीज़ को लेके आपको मैड होना ज़रूरी है। मैड का मतलब पागल नहीं है, कपड़ा बांट के नहीं जाना है, ठीक है। मैड का मतलब होना चाहिए कि दैट आप उससे बिना नहीं जी सकते हैं, सुबह से लेकर रात सोने तक, ओके, रात सोने तक आपको उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में प्लान करना चाहिए आपको किसी भी हालत पर। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ब्यूटीफुल सेंटेंस कहा है कि दैट ड्रीम इज नॉट व्हाट यू गेट व्हेन यू स्लीप। जब आप रात को सोते हैं जो आता है उसका नाम ड्रीम नहीं है, ड्रीम इज व्हाट दैट यू आर नॉट लेट यू स्लीप। इसका मतलब आपको सोने नहीं देता है, उसको सपना बोल के कहते हैं। ड्रीम का मतलब ये नहीं कि रात को सो के हम देखते हैं, वो सपना नहीं है, अंडरस्टैंड। ड्रीम का मतलब ये है कि दैट आपको जो सोने नहीं देता है, दैट्स कॉल्ड ड्रीम, understand. So in that case we have to go ahead with like this. So I hope you all understand the last videos and all. So this is about the 10 day and the grammar class. A preposition we are starting today. Preposition is a word, it's actually a word. मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि that it is a word, एक ऐसे शब्द है कि मैंने पर्टिकुलर वर्ड कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ वर्ड, कोई भी एक ऐसे शब्द है, shows the relationship between noun और pronoun। एक ऐसे शब्द है जो noun और pronoun के बीच का relationship को दिखाता है, that is called preposition। See, what is that? As I told you, once again I'll repeat you that without examples, without writing a sentence, nobody can teach you grammar. If you want to understand a grammar, you have to have more and more examples. You have to learn more and more examples. See, like if I say an example, the cow is dash garden. See, is it a sentence? The cow is dash the garden. It cannot be a proper sentence. There is something missing here. The cow is in the garden, right? So this is how we normally see. Now it is a complete sentences. There is a noun and there is a noun here also. It shows the relationship between one noun to another noun. It may be a noun or pronoun, doesn't matter. So it may be a noun or pronoun. So it shows the relationship. यहाँ पे देखो रिलेशनशिप दिखा रहा है। नाउन कहाँ पे, गाय कहाँ पे है, गार्डन में है बोल के समझा रहा है, राइट। सो दिस इन वी कॉल इट एज ए प्रीपोजिशन। आई एम नॉट सेइंग इन इज ऑलवेज प्रीपोजिशन। मैं बताया था आपको कि आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट ऑफ स्पीचेस आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, द वर्ड which convert into adverb, the same word can convert into preposition and same word can convert into conjunction also. I'll show you after this completion of part of speech. I'll give you. Please do not go with the words. Word के साथ कभी नहीं जाना है आपको. Understand? You always go with the meaning, the definition. Always you have to go with the definition, not the words. Here in the next sentence, it may changes to something else, right? The same cases if I say the mobile is dash the table. See, this sentence at present फिलहाल ये ठीक नहीं है because something is missing. The mobile is on the table. See, the mobile is noun, the table is noun. So on is talking about the relationship of one noun to another noun. So this is called preposition. Preposition is such a wonderful word which shows the relationship between noun or pronoun. It may be a two nouns or it may be two pronouns, right? So you have to understand the definition of the preposition, not the words, right? So words may vary, the meaning of the words also may changes, right? But the definition of the preposition will never ever change. So we always go with definition. See, lot of problems आजकल हमको बहुत सारा problem face करने के लिए मिलता है that कि English is a confusional language. How do we come out of that? Very simple. हम क्या कर दिया है, आसान तरीका हमको चाहिए. We want a easiest way to learn. सभी बच्चे यही चाहते हैं ना कि that हमको easy तरीका बता दो सर. Easy से कैसे हमको ग्रामर याद रख सकते हैं, ये which is not possible at all. शॉर्टकट विल कट शॉर्ट द लाइफ. शॉर्टकट क्या होगा, कट शॉर्ट द लाइफ. इस सीखने के लिए शॉर्टकट बोल के कोई चीज है ही नहीं है, अंडरस्टैंड. सो वंस यू स्टार्टेड टू बी एन एक्सपर्ट
of definitions, once you started to an expert to understand the meaning of the sentences, then you can automatically go with to preparing a beautiful sentences. Once you started to write the sentences, you can freely can speak sentences आराम से, right? So this is the funda. It's clear? So I hope you'll understand the definition of preposition, and we will go with the next one, and we will able to complete today as a part of speech. It's a conjunction. It is a word. Join the words or sentences. It's a join the words or sentences. एक ऐसा शब्द है कि दो अलग अलग शब्द को जोड़ते हैं, नहीं तो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं. This is the wonderful word. It's a conjunction is a wonderful word. It join the words or it join the beautiful two sentences. देखो कैसे होता है. We'll see. To and to makes for. You see, ये वो एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, उसको हमने मिला दिया, राइट? दिस वर्ड एंड वी कॉल इट एज कंजंक्शन. सर हमेशा एंड कंजंक्शन होगा? नो, आई हैव रिपीटेड, बार बार मैंने कह चुका हूं. ऐसे नहीं है कि दैट एवरी वर्ड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, कभी नहीं. अंडरस्टैंड? इट विल चेंज. मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं. ये कंप्लीट होने के बाद आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि दैट एक ही वर्ड कंजंक्शन भी होगा, प्रीपोजिशन भी होगा एंड एडवर्ब भी होगा. वही वर्ड मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को चेंजेस कर दूंगा, दैट्स ऑल. सेंटेंस को चेंज कर दूंगा, वर्ड स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा, लेकिन वो मीनिंग बदल जाता है. देखिए, हाँ, वी विल लर्न आफ्टर दिस क्लासेस. कंजंक्शन. आई रैन फास्ट बट मिस द बस. सी, आई रैन फास्ट, मैंने जोर से दौड़ के गया. मिस द बस मिस कर दिया, राइट? टू डिफरेंट सेंटेंसेस, यहाँ पे टू डिफरेंट वर्ड्स था, दो अलग अलग वर्ड्स था, मैंने उसको मिला दिया. दो अलग अलग सेंटेंसेस था, मैंने उसको मिला दिया. तो दिस वर्ड आई विल कॉल एज ए कंजंक्शन, राइट? सो दिस इज द वेरी सिंपल फिनोमेना. एज आई टोल्ड यू, if you don't understand, I will repeat once again. You get back me the feedback. मेरे को वापस आप feedback करिए कि that ये sentence काफी नहीं है सर, I want more sentences. As I told you in the first class itself, that I will give you 1000 examples if you want. I have 1000 examples of this part of speeches. Only part of speeches के लिए मेरे पास 1000 example है मेरे दिमाग में. That I want you to learn, that's it. I want you to do something. मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें घर में बैठ के. ऐसे नहीं कि दैट मेरे जो एग्जांपल्स आपने लिख दिया तो कोई फायदा नहीं है. There is no use at all. The only use when it will happen, it will happen only when you started to write something by sitting at home, right? So then only something can happen. जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में जो भी करना है आपको करना है ना, कि आपको ही करना है. तो भगवद गीता से फिर एक श्लोक दे रहा हूं आपको कि दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन. एक ऐसे सिचुएशन आता है कि दैट वहां पे भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि दैट भगवान मैं नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट हैंडलिंग द प्रेशर, मैं इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूं, आई एम नॉट हैंडलिंग एट ऑल. जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा दादाजी है, मेरा गुरु है, सबसे इंपॉर्टेंट भीष्म के, उनके खिलाफ मैं कैसे लड़ सकता हूं? आई कैन नॉट हैंडल. तो कृष्ण ने उनको बहुत समझाता है, उसके बाद भी वो रेडी नहीं होता है मानने के लिए कि दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट एट ऑल. तो लास्ट में कृष्ण को अर्जुन ने एक सलाह देता है कि दैट भगवान इतना आप जानते हो कि दैट मैं तो जानता हूं कि व्हाट यू आर, आप कितना ताकतवर हो, मैं जान चुका हूं अभी कि दैट आप एक काम करिए ना कि दैट यू डू इट, आप ही खुद कर लो, ये सब कुछ किसको नष्ट करना है सब कर लो, कि आप क्यों करा रहे. तो देन ही विल एक्सप्लेन वन ब्यूटीफुल सेंटेंस टू अर्जुना कि दैट अर्जुन को समझाते हैं कि दैट ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट माई ड्यूटी. अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर इंसान, हर एक लड़का, हर एक बंदा, you know, the whole world is belongs to karma, karmanyevarasya. We have to work. This is not my duty. My duty is to motivate you. मेरा काम इतना ही है कि दैट मैं तुमको मोटिवेशन कराना है. क्योंकि मोटिवेशन कराना है कि दैट तुमको पता नहीं है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो. अंडरस्टैंड? मेरा काम इतना ही है कि दैट तुमको मेरे को समझाना है कि दैट इस दुनिया में तुम क्यों आए हो. अंडरस्टैंड? सो आई हैव डू दैट. I have already done that. I am still doing it. मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं तुमको समझाने के लिए.
कि तुम यदि इस काम करोगे तो तुम मुक्ति पाओगे। अंडरस्टैंड? अनटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट डू इट यू विल नॉट गेट मुक्ति। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि दैट आई हैव ऑलरेडी डन माई ड्यूटी। मैं अभी भी कोशिश उसी ड्यूटी में लगाऊं कि जिस काम के लिए मैंने इस दुनिया पे आया हूं, इस काम के लिए आया हूं, मैं करके जा रहा हूं। आई एम ऑलवेज डूइंग इट, स्टिल आई एम डूइंग इट, एंड दिस इज योर ड्यूटी टू फिनिश द वॉर। महाभारत को कंप्लीट करना तुम्हारा काम है, इसको समझाना मेरा काम है, तो मैं कर रहा हूं। मैं चाहा तो मेरे लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नैनो सेकंड बोलते हैं ना, वो नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा पूरा महाभारत को खत्म करने के लिए। ये सच है एक्चुअली कि दैट भगवान कृष्ण चाहा होते तो नैनो सेकंड भी नहीं लगता था कि दैट पूरा भगवत गीता, भगवान मतलब पूरा महाभारत को खत्म करने के लिए। नॉट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतना भी समय नहीं लगता। बट ही नोज दैट इट इज नॉट हिज ड्यूटी। उनको पता था कि दैट वो उनका ड्यूटी नहीं है, तो उसके लिए वो हमेशा क्या करते थे कि दैट अर्जुन को समझाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा भगवत गीता का सार इसलिए दे रहा हूं कि हमेशा मेरा हर वीडियो में देखेंगे कि दैट मैं भगवत गीता का कुछ ना कुछ देने का कोशिश करता हूं, बिकॉज मैंने उस भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा हूं। बहुत मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैंने कितना उससे सीखा हूं और इससे इंस्पायर हुआ हूं। एंड मैं ये भी जानता हूं कि दैट दुनिया का बड़ा सा डिप्लोमेटिक, यू वर्ड अबाउट डिप्लोमेसी, राइट? आजकल तो हर जगह पे ये वर्ड चलता है, डिप्लोमेसी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन डिप्लोमेसी वर्ड हमेशा चलता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसी दो ही आदमी थे, एक थे भगवान कृष्ण, दूसरा थे हनुमान। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? दूसरा देशों के साथ या दूसरा लोगों के साथ कनेक्शन कराना। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन यही दो ही थे। तो यही दो लोग ही हमको दुनिया में सिखाया है बहुत कुछ चीजें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और ये क्या चीज होता है? इंग्लिश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग। अंडरस्टैंड? तो व्हेन यू, व्हाई आई एम गिविंग दिस मोटिवेशन टू यू ऑलवेज, इसको आपको मोटिवेशन देने का मतलब एक ही चीज है, इसलिए कि दैट व्हेन यू स्टार्टेड टू मोटिवेट, व्हेन यू ग्रो अप योरसेल्फ, माइंड आपका जो है ना जब शार्प हो जाता है, तो इंग्लिश क्या, दुनिया का कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकता है। नथिंग कैन स्टॉप यू। अंडरस्टैंड? सो वंस यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आप खुद को जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जब तक तुम खुद को नहीं जान पाओगे कि दैट तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो इस दुनिया में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कि दैट मैं भी ऐसा ही हूं कि यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर बस मैं बोल सकता हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड? मोटिवेशन कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। मोटिवेशन कितने लेवल तक सक्सेस हुआ है वो पता कैसे चलेगा? व्हेन यू स्टार्टेड टू सक्सेस। आपका दुनिया में जब सक्सेस हो जाते हैं तभी आपको पता चलता है, अंडरस्टैंड, कि आपने कितना सक्सेस हुआ है लाइफ में, राइट माय डियर? सो एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके साथ आ रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स एंड प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन परफेक्ट। ये कोई पुराना डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। सच हमेशा एक ही होता है, मैं बोलूं या कोई और बोले, डजंट मैटर, सच हमेशा एक ही होता है। यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे। हर रोज आपको ये प्रैक्टिस करना है, जिस प्रोसेस में मैंने समझा के आ रहा हूँ। नॉट ओनली दिस, जैसे हर रोज का डे टू डे, डे इन एंड डे आउट में जो इंग्लिश बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको हमेशा करते रहना है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। हर रोज आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मोटिवेशन खुद को करते रहना है, और उसके साथ साथ मेरे वीडियोस को भी आपने विदाउट मिसिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू डोंट सरप्राइज। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स टू डू दैट सेम थिंग। एंड फाइनली प्लीज डोंट मिस एंड डोंट get excited to do something else and something like that. So please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Thank you very much.